हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग फैंटास्टिक एंड यू ऑल आर एक्साइटेड फॉर एग्जाम्स इन November 23 attempt. Just 5 months to go. In this 5 months, you will study properly, you will give your exams, clear it, and you will fulfill your dream of becoming a chartered accountant. Yes, just 5 months to go. But remember, these 5 months of study leave is very, very crucial. I think in your life, this is the first time that you are going to study for such a long period. 5 महीने तक घर पर बैठ के आपको 10 से 12 घंटे पढ़ना है. इसीलिए planning this 5 months becomes very crucial. If you don't plan this 5 months properly, then trust me, you will create problems for yourself. और अगर आप ये 5 months को अच्छे से प्लान करते हो, then you will be able to complete your syllabus also properly. You will be able to revise all the subjects perfectly, and you will be able to give your exams and clear it in this coming attempt. So planning becomes very important. But you don't worry, you don't take tension, because I have come up with a 5-month planner for you all. अगर आप ये प्लानर फॉलो करते हो, then trust me, no one can stop you from clearing the exams in this coming attempt. This video might be a little long, लेकिन if you invest 15 minutes today and prepare a proper plan for this 5 months for yourself, then trust me, you are surely clearing in November 23 attempt and becoming a chartered accountant. So let's begin this video. Let me try and explain you this planner. But before we discuss this planner, there are few points which you need to keep in mind. What are those? Let's discuss them first. First point is how many reads you have to cover in your study leave. So आपको आपके study leave में 3 reads complete करने हैं. 1 फुल सिलेबस रीड होगा, फर्स्ट रीड जो आपका है एक्सटेंसिव रीडिंग, एंड उसके बाद 2 रिविजन्स. हेंस टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स दैट यू विल डू इन योर स्टडी लीव इज 3. हाउ यू विल डू दैट वो हम ऊपर प्लानर में डिस्कस करेंगे. एंड नंबर ऑफ टेस्ट यू हैव टू गिव इज 1 or 2. These has to be full syllabus test. I have uploaded a video on this channel why 80% students fail in the exam. The reason is test. आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं. Since many students don't give full syllabus test, उनको वो एग्जाम के एटमॉस्फेयर का पता ही नहीं चलता है. Will they be able to complete the paper in 3 hours? Are they able to handle the fear and anxiety during that exams? वो अगर आप घर पे एक बार प्रैक्टिस नहीं करते हो, then it becomes very difficult to clear. इसीलिए आपको ये आपके स्टडी लीव में नंबर ऑफ रीड्स 3 कंप्लीट करने हैं और एटलीस्ट एक फुल सिलेबस टेस्ट तो देना ही है. सेकेंड पॉइंट इज कवर 100% कॉन्सेप्ट्स. एक चीज याद रखना, दैट if you don't do anything in first read, then वो आप आगे कभी नहीं करने वाले हो. Something that you have left today is left forever. अगर आप सोचते हो कि यार ये टॉपिक, ये सब्जेक्ट, या फिर ये जो पार्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, ये चैप्टर है, ये मैं सेकेंड रीड में कर लूंगा, ये मैं थर्ड रीड में कर लूंगा, तो वो नहीं होने वाला है. अगर कुछ आपने फर्स्ट रीड में छोड़ा है तो वो आगे जाके सेकेंड रीडिंग में पक्का नहीं होगा, और थर्ड रीड में तो पक्का ही नहीं होगा. इसीलिए आपको आपके फर्स्ट रीड में ही, इन योर फर्स्ट रीड इटसेल्फ, यू हैव टू कवर 100% concepts and 100% syllabus. Don't leave anything, because now is the time. Initially आपके पास टाइम होता है अच्छे से कंप्लीट करने के लिए. अगर तभी आप कुछ छोड़ देते हो तो वो आगे जाके करना becomes very difficult. इसीलिए remember this thing in mind कि if you leave something today, that will be not done कभी, वो कभी होने ही नहीं वाला है. इसीलिए आपको आज ही 100% concepts कवर करके चलने फर्स्ट रीड में. थर्ड पॉइंट इज स्टडी नाउ बट प्लान फॉर 1.5 days. आज आप पढ़ाई कर रहे हो, आज आप शांति से 8-10 दिन ले रहे हो एक सब्जेक्ट के लिए, लेकिन आज से ही आपको 1.5 days के लिए प्लान करना है. सर व्हाट इज दिस 1.5 days? तो जब भी आप फाइनल एग्जाम्स नवंबर में लिखने जाओगे, तभी हर एक सब्जेक्ट के पहले आपको 1.5 days मिलेगा प्रिपरेशन करने के लिए. तो वो 1.5 days में आप कैसे पढ़ने वाले हो, कहां से पढ़ने वाले हो, कौन सी चीजें देखने वाले हो, इसका प्लानिंग कभी होता है? आज से होता है. आज भले आप पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन 1.5 days को ध्यान में रख के पढ़ाई करनी है. इसीलिए सेकंड पॉइंट था कि इफ यू डोंट डू समथिंग टुडे, यू वोंट बी एबल टू डू दैट एनीवेयर एल्स. इसीलिए आपको आज से क्या करना है? 1.5 days का प्लानिंग करना है. वो कैसे करेंगे? तो फोर्थ पॉइंट इज डोंट यूज मल्टीपल रिसोर्सेस. 10-12 फैकल्टी के बुक्स लेके बैठे हो, 10-12 फैकल्टी को रिफर कर रहे हो, उसके साथ आईसीए का मॉड्यूल रिफर कर रहे हो. ऐसे नहीं करना है. आपको सिर्फ एक ही फैकल्टी जिनसे आपने पढ़ा है,
या फिर आप जिनको ट्रस्ट करते हो और जिनकी बुक्स में से पढ़ने वाले हो उनके बुक्स और उनके रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं। और साथ में अगर आपको ICAI का मॉड्यूल रखना है फॉर रेफरेंस तो आप वो रख सकते हो। मैक्सिमम दीज टू थिंग्स, एक आपके फैकल्टी के नोट्स एंड वीडियोस एंड दूसरा है ICAI का मॉड्यूल फॉर रेफरेंस। और अगर आप ICAI के मॉड्यूल में से पढ़ते हो तो नथिंग लाइक दैट। तो ये दो ही चीज होनी चाहिए। डोंट रेफर मल्टीपल फैकल्टीज एंड रिसोर्सेज, उससे आप कंफ्यूज होगे। 1.5 डेज में आप सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाओगे और अगर 1.5 डेज में आप सारी चीजें नहीं देख पाते हो तो वो एग्जाम में रिकलेक्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है। इसीलिए डोंट यूज मल्टीपल रिसोर्सेज एंड प्लान फॉर 1.5 डेज फ्रॉम टुडे। अगर फर्स्ट रीड में आपको लग रहा है कि आई वांट टू समराइज दिस कॉन्सेप्ट, I want to make handwritten notes for a particular subject, I want to actually write formulas in SF and make my formula book, तो ये सारी चीजें फर्स्ट रीड में करो। Invest your time in first read. This will help you save your time in 1.5 days and revise entire syllabus in 1.5 days beautifully. इसीलिए आपको क्या करना है, आज पढ़ाई करनी है लेकिन प्लान किसके लिए करना है, 1.5 डेज और एग्जाम के लिए, क्योंकि अल्टीमेटली तो वही क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करेंगे तो ही हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे। इसीलिए आपको अच्छे से प्लानिंग करना है। Fifth point, know your strengths and target 80+ in those 2 or 3 subjects. आज आपको शायद नहीं पता आपको कौन से सब्जेक्ट्स पसंद है या फिर कौन से सब्जेक्ट्स में आप स्ट्रांग हो, लेकिन एज यू कंप्लीट योर फर्स्ट रीड यू विल बी वेरी वेल अवेयर ऑफ द सब्जेक्ट्स दैट यू आर वेरी गुड एट। और ऐसे सब्जेक्ट्स को इग्नोर नहीं करना है कि आई नो दिस सब्जेक्ट, यार ये तो मैं बाद में देख लूंगा। नहीं, अगर किसी सब्जेक्ट में आप अच्छे हो तो उनकी प्रैक्टिस आप अच्छे से करो and target 75-80 marks in that subject. This will make a difference. This will assure you that you are clearing your exams and this can also help you get an all India rank in your exams. Rankers जो होते हैं वो कोई सारे सब्जेक्ट्स में अच्छे नहीं होते, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, जो स्ट्रेंथ्स होती है ना 2-3 सब्जेक्ट की, उसमें अच्छे से फोकस करके उसमें 75-80+ लेके आते हैं। इवन आई हैव गॉट अ रैंक एंड आई हैव 2-3 सब्जेक्ट्स जो अच्छे थे जिसमें आई हैव स्कोर्ड एन एग्जामिनेशन में गो स्कोर्ड अबव 75-80। इससे क्या होता है, आपके मार्कशीट में एक ड्रास्टिक चेंज हो जाता है एंड उसकी वजह से आप अच्छे से एग्जाम में स्कोर कर पाते हो। तो रिमेंबर दिस पॉइंट। लास्ट पॉइंट इज, अभी जो हम प्लानर डिस्कस करने वाले, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया कलरफुल प्लानर, दैट इज अ मैक्रो प्लानर। उसमें मैंने क्या किया है कि आपको कितने दिनों में कौन से डेट्स तक कौन से सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने, दैट आई हैव डिस्कस्ड। लेकिन यू हैव टू प्रिपेयर अ डेली प्लानर। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्या, डेली प्लानर। स्टडी लीव में ये गलती मत करना। While I was studying, I had maintained a very small book, छोटी सी डायरी थी जिसमें मैं रोज रात को कल का प्लानिंग करता था। समझो ऊपर हमने प्लानर में लिखा है कि SCMP मुझे 8 डेज में कवर करना है। अभी 8 डेज में कैसे करेंगे, तो यू हैव टू एंश्योर कितने चैप्टर्स, इंडेक्स देखो तो देयर आर 11 चैप्टर्स इन SCMP। तो नाउ हैव अ डेली प्लान। अगर आप कल से स्टार्ट करने वाले हो तो आप देखो आज रात को कि कल मैं कौन से चैप्टर्स करूंगा। आई विल कंप्लीट चैप्टर 1 and 2। उसमें भी यू प्लान कि मॉर्निंग में आफ्टरनून 2 PM तक मैं चैप्टर 1 करूंगा, फिर 2:30 से लेकर रात को 9:30 तक मैं चैप्टर 2 करूंगा। तो रोज का ये प्लान होना चाहिए जो आपको रोज बनाना है। उससे क्या होगा कि आपके जो 11 चैप्टर्स है तो 5 डेज में वो 11 चैप्टर्स हो जाएंगे। 1 day you can keep for module 3 और बाकी के जो 2 दिन बचे उसमें you can do case study digest, RTPs and MTPs। ऐसे हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको डेली प्लान करना होगा और वो कभी करना है, रात को सोने से पहले। आपने ये मैक्रो प्लानर एक बना लिया, उसके बाद डेली प्लानर रात को बनाने की, कल मैं ये चैप्टर्स करूंगा, ये टाइम में करूंगा। रात को वापस इंट्रोस्पेक्ट करो, आज हो गया, कुछ रह गया मेरे टारगेट्स में तो उसको इंट्रोस्पेक्ट करके वो अगले दिन पे डाल के वापस अगले दिन का प्लानर बनाओ। रोज अगर आप टारगेट्स बनाते हो तो आपका जो मैक्रो प्लानर है ना वो तभी फॉलो होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने प्लानिंग कर ली, 8 दिन में SCMP कर रहा है, अभी आप बस बिंदास किए जा रहे हो। फर्स्ट डे आप चैप्टर 1 लेके बैठे हो, आप चैप्टर 1 कर रहे हो। ऐसा नहीं होता है। आपको क्या करना है, आपको डेली प्लानर फॉलो करना है, डेली टारगेट्स बनाने और उससे भी अचीव करने की ट्राई करनी है। चलिए नाउ लेट्स डिस्कस कि ये पूरा जो प्लानर है वो कैसे फंक्शन करता है। अभी मैंने जो यहाँ पे प्लानर बनाया है दैट इज 1 सब्जेक्ट पर डे, यानी एक सब्जेक्ट पर डे के बेसिस पे मैंने प्लानर बनाया है। लेकिन अगर आपकी इच्छा है कि यू वांट टू स्टडी 2 सब्जेक्ट्स पर डे, देन वेरी वेल यू कैन डू दैट। फर्स्ट रीड में अगर आपको 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं तो कैसे करोगे, यहाँ पे देखो मैंने लिखा है कि FR आपका जो है वो 12 डेज में खत्म होना चाहिए और जो लॉ है वो 8 डेज में खत्म होना चाहिए। तो अगर आप 2 सब्जेक्ट्स कर रहे हो तो एक थियरी एक प्रैक्टिकल ले लो। तो अगर आप FR और लॉ ये 2 सब्जेक्ट साथ में कर रहे हो तो यू कैन एड अप द डेज, 12 + 8 विच कम्स टू 20। तो 20 दिन में आपको क्या करना है, FR और लॉ खत्म करना है। तो ऐसे आप कर सकते हो। So you can just add up the days if you are doing 2 subjects
पर डे, और अगर आप 1 सब्जेक्ट पर डे करते हो तो आप ये प्लानर फॉलो कर सकते हो। दिस इज फॉर बोथ ग्रुप्स। अगर आप एक ही ग्रुप देने वाले हो तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू कम अप इन द नेक्स्ट वीडियो विद द प्लानर ऑफ हाउ यू कैन गिव 1 ग्रुप। तो आप ये वीडियो भी देख लो और उसके बाद वो वीडियो भी देखना, तो इट विल हेल्प यू टू प्रिपेयर योर प्लान परफेक्टली। अभी लेट्स सी फर्स्ट रीड कैसे होना चाहिए। सो योर फर्स्ट रीड शुड बी कंप्लीटेड इन 75 डेज। अभी यहाँ पे ना मैंने इनफ बफर डेज रखे, क्योंकि यू नेवर नो, कई बार कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, कोई फैमिली में इश्यू हो जाए, कहीं बाहर जाना पड़े, किसी को मिलना पड़े, तो 1-2 दिन जो ऐसे आपके होते हैं वो मैंने बफर डेज रखे। विल प्रे कि ऐसा कुछ भी ना हो, आपके स्टडी लीव ब्यूटीफुली चले जाए। लेकिन अगर कोई अनसर्टन इवेंट्स होते हैं तो उसके लिए ये प्लानर में इनफ बफर डेज रखे हैं। तो आप जब भी आपका प्लानर कस्टमाइज करते हो तो यू हैव टू कीप 1 or 2 बफर डेज इन ईच रीड। नाउ हाउ शुड योर प्लानर गो? आई हैव केप्ट द सब्जेक्ट्स इन द ऑर्डर ऑफ योर एग्जाम्स एंड आई वुड रिकमेंड, अगर आप यही ऑर्डर में पढ़ते हो तो आपका ब्रेन जो है वो इजीली ये चीजों को रिकलेक्ट कर पाएगा कि यही ऑर्डर में पढ़ना है, ये ऑर्डर में पेपर्स आते हैं। यू कैन चेंज योर सब्जेक्ट, उसमें कोई वांधा नहीं है, लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप ये ऑर्डर में पढ़ो। फर्स्ट रीड कैसा होना चाहिए? तो एफआर आपका 12 डेज में होना चाहिए, लॉ 8 डेज में, एसएफएम 9 डेज में, ऑडिट 9 डेज में, एससीएमपी 8 डेज में, आईडीटी 10 डेज में, इलेक्टिव 5 डेज में और डीटी 11 डेज में। ऐसे करके रफली विद इन 75 डेज एंड बाय 24 अगस्त 2023 यू शुड बी डन विथ योर एक्सटेंसिव फर्स्ट रीड। अभी अगर आपके क्लासेस अभी तक खत्म नहीं हुए हैं तो ट्राई करो एंड कंप्लीट योर क्लासेस एज अर्ली एज पॉसिबल, बिकॉज नाउ इट्स हाई टाइम। अभी आपके क्लासेस खत्म हो जाने चाहिए और आप अभी स्टडी लीव में अच्छे से पढ़ाई करने के लिए बैठ जाने चाहिए। आई हैव स्टार्टेड दिस प्लानर फ्रॉम 10th जून एंड आई हैव केप्ट बफर डेज। तो अगर आपके कुछ क्लासेस पेंडिंग है तो 8-10 दिन 15 दिन लेके वो सारे क्लासेस कंप्लीट कर लो और उसके साथ साथ आप सेल्फ स्टडी भी करना। तो अगर आप अभी क्लासेस कर रहे हो और सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो ये जो नंबर ऑफ डेज यहाँ पे मैंने लिखे वो शायद थोड़े कम हो जाए। एंड ट्राई एंड कवर योर फर्स्ट रीड कब तक? बाय 24 अगस्त you should be able to complete your first read। अभी आते हैं सेकंड रीड पर। सेकंड रीड आपको स्टार्ट करना है 24 अगस्त से और सेकंड रीड कितने दिन में खत्म होना चाहिए? सेकंड रीड शुड बी कंप्लीटेड इन हाफ नंबर ऑफ डेज। तो यहाँ पे 38 डेज में आपका सेकंड रीड कंप्लीट हो जाना चाहिए। अभी सेकंड रीड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज This second read has to be with a test series। जी हां, आपको एक फुल सिलेबस टेस्ट लिखना है along with your second read। एंड जब भी आप सेकेंड रीड करते हो तभी आई विल रिकमेंड, अगर पॉसिबल हो तो डू 1 सब्जेक्ट पर डे। एक ही सब्जेक्ट करो एक दिन में, क्योंकि आगे जाके 1.5 डेज में तो आपको एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है ना। तो ट्राई, अगर आपका ब्रेन अलाउ करता है, माइंड अलाउ करता है, बॉडी अलाउ करती है, आप पढ़ पाते हो तो एक ही सब्जेक्ट पर डे करना। दिस विल एक्चुअली हेल्प यू अ लॉट इन क्लियरिंग योर एग्जाम्स। इसीलिए आपको क्या करना है, सेकेंड रीड में 1 सब्जेक्ट पर डे करो एंड ट्राई टू कंप्लीट 1 सब्जेक्ट। और 1 सब्जेक्ट खत्म होने के बाद रात को एक टेस्ट सीरीज दे देना। आप समझो रात को 12 बजे तक पढ़ाई करते हो तो 7-8 बजे तक वो दिन में चैप्टर वो सब्जेक्ट कंप्लीट करके रात को 8 साढ़े 8 बजे टेस्ट लिखने बैठ जाना 3 आवर्स के लिए। तो आपका वो दिन भी पूरा यूटिलाइज हो जाएगा और वो सब्जेक्ट खत्म होने के बाद आप टेस्ट भी दे दोगे। लेकिन ये सेकेंड रीड में ऑल 8 सब्जेक्ट्स हैज टू बी विद द टेस्ट। आपको टेस्ट देना ही है। सर सेकेंड रीड में क्यों, थर्ड रीड में क्यों नहीं? आई विल एक्सप्लेन यू बाद में। अभी ये सेकेंड रीड में आपको क्या करना है, आपको टेस्ट भी देना है एंड यू हैव टू यूज हाफ नंबर ऑफ डेज। मैंने यहाँ पे इंडिविजुअल नंबर ऑफ डेज लिखे हैं, वो आप देख लेना। अभी आपका जो सेकेंड रीड है वो एंड ऑफ सितंबर यानी 29 सितंबर तक खत्म हो जाना चाहिए। अभी अक्टूबर में क्या करना है, तो अक्टूबर में आपको करना है थर्ड रीड एंड फाइनल रीड। अक्टूबर में आपका होगा थर्ड रीड यानी फाइनल रीड। अब ये थर्ड रीड में सर टेस्ट सीरीज क्यों नहीं देने हैं? क्योंकि आपके एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं। अगर ये थर्ड रीड में आप एग्जाम देते हो और कोई टेस्ट में अगर आप कम स्कोर करते हो देन दैट विल हैम्पर योर कॉन्फिडेंस एंड इन द लास्ट मंथ योर कॉन्फिडेंस शुड नॉट बी अफेक्टेड। यू शुड बी ऑन टॉप ऑफ द स्काई कि मुझे सब कुछ आता है, मैंने सब कुछ अच्छे से पढ़ा है और मैं एग्जाम ब्यूटीफुली लिखने वाला हूं। इसीलिए आपको थर्ड रीड में टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। टेस्ट सीरीज सेकेंड रीड में दे दो। जो भी मिस्टेक्स होते वहां पे करेक्ट कर लो। सारी चीजें सबको याद नहीं होती है। कवर हमें 100% करना है, लेकिन सबको सब कुछ याद नहीं होता है। कई बार गलतियां होती है। तो अगर थर्ड रीड में आप वो गलतियां करते हो देन यू माइट स्टार्ट सेल्फ डाउटिंग योरसेल्फ। इसलिए आई वुड रिकमेंड लास्ट मंथ में कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं देने। लास्ट मंथ में अगर आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है ना तो लिखो, 100% लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए। लेकिन कैसे? रात को आपने जो भी पढ़ा है ना उसमें से 2-3 सम सिलेक्ट करो, लिख लो। 2-3 क्वेश्चन सिलेक्ट करो, रात को 30 मिनट्स लिख लो। रोज 30-30 मिनट्स लिखो, ये चलेगा, सेल्फ इवैल्यूएशन करो। लेकिन वो जो फुल सिलेबस टेस्ट है ना वो थर्ड रीड में नहीं देना है।
थर्ड रीड आपका कैसे जाएगा, तो यू स्टार्ट इट फ्रॉम 30 सितंबर, यानी लास्ट मंथ जो आपका अक्टूबर बचा है, और उसमें 3-3 दिन में आपको ट्राई करना है कि आप एक एक सब्जेक्ट कंप्लीट करते हो। एंड रफली आर इन 20-24 डेज आपको क्या करना है, आपका पूरा जो थर्ड रीड है वो कंप्लीट। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्लान आपके ये स्टडी लीव में एक फर्स्ट रीड यानी फुल एक्सटेंसिव रीड होगा, और साथ में 2 रिविजन यानी सेकंड एंड थर्ड रीड भी हो जाएगा। और उसके बाद आता है फाइनल रीड। आपके एग्जाम्स नवंबर में आ जाएंगे, तभी आपको 1.5 डेज मिलेंगे। लेकिन जो फर्स्ट पेपर है FR, सॉरी यहां पे इंटरचेंज हो गए सब्जेक्ट्स, नो सॉरी, फाइनल रीड में हमारे पास दिन बचे हैं। फाइनल दिन में 24 एंड 25 अक्टूबर, यानी जो 2 दिन है लास्ट आपके जो एग्जाम्स चालू होने वाले हैं उसके कुछ 6-7 दिन पहले आपको क्या करना है, SFM करना है फॉर 2 डेज, क्योंकि वो आपका सेकंड पेपर है। अगर आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर अच्छा जाता है तो आपका एक मोमेंटम बिल्डअप हो जाता है, और अगर मोमेंटम बिल्डअप हो जाता है तो आप अच्छे से फिर सारे पेपर्स दोगे। तो आपको क्या करना है, 24 एंड 25 अक्टूबर को SFM की पढ़ाई करनी है, उसके कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कर लो। एंड 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर या फिर 1 नवंबर, अगर आपके एग्जाम 2 नवंबर से स्टार्ट हो रहे हैं तो 1 नवंबर तक, ये 5-6 दिन आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, FR पढ़ना है। FR के लिए आपके 5-6 डेज दे दो, एंड फ्रॉम 1 नवंबर योर एग्जाम्स विल बिगिन। एंड अगर आप ये प्लानर फॉलो करते हो देन ट्रस्ट मी, आपके एग्जाम्स काफी अच्छे जाने वाले हैं, आपके एग्जाम्स एकदम अच्छे से जाएंगे। तो आई होप आपका ये प्लानर यूजफुल रहा है। अगर आप ये प्लानर फॉलो करते हो और आप खुद से ये मैक्रो प्लानर यूज करके डेली प्लानर भी बना देते हो, देन नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्लियरिंग दिस एग्जाम्स इन कमिंग अटेम्प्ट। ये जो प्लानर है वो मैं वीडियो के नीचे गूगल ड्राइव लिंक है उसके अंदर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो। और इसके साथ साथ if you want to see that how can you get a rank, या फिर mistakes that you must avoid in your study leave, या फिर tips to study for 12 to 14 hours a day, तो ये सारे टॉपिक्स पे वीडियोस मैंने ये चैनल पर ऑलरेडी डाल दिए हैं, तो आप जाकर वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो। और ये जो प्लानर है वो अगर आपको यूजफुल लग रहा है तो जरूर कमेंट करके जाना कि ये प्लानर आपके लिए यूजफुल है और आप ये यूज करने वाले हो। और अगर आपके लिए यूजफुल है तो आपके फ्रेंड्स के लिए भी यूजफुल होगा, तो उनके साथ भी ये वीडियो का लिंक जरूर शेयर करना, सो दैट इवन दे कैन बिकम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन दिस कमिंग अटेम्प्ट। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक बटन हिट करना, सो दैट इट कैन रीच मैक्सिमम पीपल। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डू कमेंट इन द वीडियो, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू दिस चैनल देन आज ही सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आई एम गोइंग टू कम अप विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यहां तक मुझे सुनने के लिए थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग, कीप स्टडी, स्टे मोटिवेटेड। बाय बाय।